In question number 6, given that cos A is equal to cos B and we have to prove angle A is equal to angle B. इसका मतलब क्या है? यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC को आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रूव करते हैं तो हमारे उसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. देन cos A is equal to cos B. अब cos A is equal to cos B का मींस क्या है? एंगल A एंड एंगल B बोथ आर एक्यूट एंगल्स. क्या है वो? एक्यूट एंगल्स हैं. Then angle C is right angle. तो triangle ABC is shape form. Angle C is right angle. Angle A and angle B are acute angles. Now cos A is equal to क्या होगा? AC upon AB and cos B is equal to BC upon AB. इसके बाद AB को हमने रिमूव कर दिया यहाँ से. Then क्या बचा हमारा? AC is equal to BC. जब किसी भी ट्रायंगल की if two sides are equal then triangle is isosceles. Hence triangle ABC is isosceles triangle. We know that the angle opposite to the equal side are always equal. Hence angle A is equal to angle B. In question number 9, given that tan A is equal to 1 upon root 3 and triangle is right angled at B. Clear? Triangle is right angled at B. We know that tan A is equal to side opposite to given angle upon side adjacent to the given angle. अब A एंगल ऊपर वाला हमारा तो अपोजिट साइड कौन सी होगी? BC और एडजेसेंट कौन सी होगी? AB. Then tan A is equal to जाएगा BC upon AB. Then BC is equal to 1 and AB is equal to root 3. अब हमारे पास दो साइड गिवन है, थर्ड निकालनी है तो बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस से निकाल सकते हैं. देन बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 AC स्क्वायर बराबर 4 AC is equal to 2. Now in the first problem given that sin A cos C plus cos A sin C. Sin A side opposite to the given angle upon hypotenuse. Then BC upon AC. Cos C side adjacent to the given angle upon hypotenuse. BC upon AC. Similarly, cos A AB upon AC and sin C AB upon AC. दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो गया. Then BC upon AC का होल स्क्वायर प्लस AB upon AC का होल स्क्वायर. BC is 1, AC is 2, AB is root 3, AC is 2. Then 1 upon 2 का whole square plus root 3 upon 2 का whole square. Then 1 upon 4 plus 3 upon 4, 4 upon 4 equal to 10. Question number 10. Given that PQ is equal to 5 cm and PR plus QR is equal to 25 and the given triangle PQR is right angled at Q. Then first of all we find value one of them. किसी एक की वैल्यू आप इसमें निकाल लोगे, चाहे PR की चाहे QR की, किसी की निकाल सकते हैं. PR is equal to 25 minus QR. अब हमारे पास दो साइड हैं. We have two sides. Number 1 PQ, number 2 PR. Then we have to find the third side. Then by Pythagoras theorem. What is hypotenuse? Hypotenuse is PR. Then PR का square is equal to QR का square plus PQ का square. Put the value of PR from the equation number 2. ठीक? Then 25 minus QR का whole square is equal to QR square plus PQ का square. Solve करेंगे इसको. Then A minus B का whole square से then 625 plus QR square minus 50 QR is equal to QR square plus 5 का square. QR square दोनों कैंसिल आउट हो गए. Then इसको हम इधर लेके ट्रांसपोज कर दी इसकी वैल्यू. minus 50 QR is equal to 25 minus 625 minus 50 QR is equal to minus 600 QR is equal to minus 600 upon minus 50 then QR is equal to 12 centimeter.
Now what is PR? PR is 25 minus QR. Then put the value of QR in equation number second. Then PR is equal to 25 minus 12. Then PR is equal to 30 centimeter. Now easily we can find the value of sin P, cos P and tan. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कुछ हमारे पास गिवन एंगल्स हैं उनकी वैल्यू निकालना सीखेंगे इस टेबल के माध्यम से। ये टेबल इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले जितने हमारे एंगल हैं गिन लेंगे 0 1 2 3 4। तो ये नंबर हमने लिख दिया यहाँ पे 0 1 2 3 4। अब जिस पर हमारा ये एंड हुआ है, जिस पर ये फिनिश हुआ है, उसी का सब में हमने डिवाइड कर दिया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ऑल एलिमेंट, सबका हमने स्क्वायर रूट लिया। देन इसका स्क्वायर रूट तो क्या आएगा 0 आएगा। इसका स्क्वायर रूट 1/2, इसका स्क्वायर रूट 1/√2 क्योंकि 2 जाको, इसका स्क्वायर रूट √3/2 और इसका स्क्वायर रूट 1 ही। ये हमारी साइन की वैल्यू आ गई। ये साइन 0 की वैल्यू है, ये साइन 30 की वैल्यू है, ये साइन 45 की वैल्यू है, ये साइन 60 की वैल्यू है, ये साइन 90 की वैल्यू है। अब हम इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो वो यही वैल्यू कॉस की वैल्यू बनेगी। जो साइन ये 1 यहां लिख दिया हमने, √3 को √3/2 1/√2 1/2। ये यदि असेंडिंग ऑर्डर में है तो इनको हमें डिसेंडिंग में लिखना है, तो ये कॉस की वैल्यू बन जाएगी। अब हम जानते हैं tan क्या होता है हमारा, tan is equal to sin A upon cos A। We know that tan is equal to sin A upon cos A। डिवाइड, बस इनको इसमें डिवाइड करते चले जाएंगे। तो 0/1 क्या हुआ 0, 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, √3/2, 1/2 से 2 कट गया, क्या बचा √3 और 1/0 इंफिनिटी। अब जिस तरह से हमने, जैसे ये असेंडिंग में है tan के उसी कॉट के उसी तरह से डिसेंडिंग में होंगे। तो इंफिनिटी √3 1 1/√3 और 0, या cot A बराबर 1/tan A भी होता है। आप इन सब वैल्यूओं को 1/, में भी लिख दोगे तो अभी यही वैल्यू आएगी 1/0 इंफिनिटी 1/1/√3 √3 1/1 1 1/√3 1/infinity is equal to 0। Now sec A is equal to 1/cos A। अब cos को हम न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर लिख देंगे। देन 1 का 1 रहेगा, ये 2/√3, ये √2, ये 2 और ये 0 का सॉरी 0 का इंफिनिटी। अब वही कहानी कोसेक के साथ है, या तो इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे क्योंकि ये किसमें है, ये असेंडिंग में लिखे हुए हैं, इनको डिसेंडिंग में लिख देंगे, या 1/sin A कर देंगे। तो इंफिनिटी 2 √2 2/√3 और 1, या साइन में भी देख लें जरा 1/0 इंफिनिटी, इसका न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर तो 2, इसका भी
√2 इसका 2/√3 और 1 का 1। इस तरह से हमारी ये पूरी टेबल क्रिएट हो जाती है।